ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕੱਢੀਏ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗੀਏ ਖੈਰ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਾਲ ਬਾਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੈਰ ਜੱਜ ਦੀ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਗੇ असगर मानी हाथ उठा के खैर जग दी मंगे अल्लाह सोने तत्ती वाना कोलों दीरी लंगे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने सानू रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने सानू वल सिखाया जिउंदा तू छड़ रहमानी नींदरा ए वेला नहीं सौण दा असी पर जा ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਾ ਬਾਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੀਂਦਰਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਾ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के वर्कर कन्वेंशन ज़ेर इंतज़ाम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हासिलपुर ओल्ड डेरा रहमानिया। मुनव्वर जिस तरह से चाँद है तारों के झुरमट में, शमा जिस तरह से जलती है परवानों के झुरमट में, मसीहा जिस तरह से बैठा हो बीमारों के झुरमट में, बरोज़े हशर ए ईमान वालों बस इसी सूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे होंगे गुनाहगारों के झुरमट में। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ कारी अब्दुल वाजिद साहिब। महफ़िल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफ़िल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सईद से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. یہ تھے کاری. تو نعت رسول مقبول کے لیے نعت کو شاعر مبشر سائم الوی وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں. مبشر سائم الوی. جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں ہم مدینے کی دھول کہتے ہیں ہم مدینے کی دھول کہتے ہیں جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں ان کے در پر برسی بارش کو ان کے در پر برسی بارش کو رحمتوں کا نزول کہتے ہیں جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں اور جو بھی مانگو دعا خدا سے وہاں جو بھی مانگو دعا خدا سے وہاں اس دعا کو قبول کہتے ہیں اس دعا کو قبول کہتے ہیں جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں اور سائم ان پر نثار ہونے کو سائم ان پر نثار ہونے کو زندگی کا
اصول کہتے ہیں۔ کون کون ہے جو حضور پہ فدا ہے؟ ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے گا صائم ان پر نثار ہونے کو زندگی کا اصول کہتے ہیں، جس کو سب لوگ پھول کہتے ہیں، اور جس کے لختے جگر حسین و حسن، جس کے لختے جگر حسین و حسن، اس کو زہرا بطول کہتے ہیں، اس کو زہرا بطول کہتے ہیں، جس کو سب لوگ پھول۔ بات آئی کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ آواز سے نہیں ہے، قلم سے ہے، تو بات آئی ہے جس کو حسین و حسن کہتے ہیں، تو فوراً میرے سامنے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ فوراً ذکر آیا ہے، کلام میرا لکھا ہوا پوری دنیا میں اس وقت ثناخواں پڑھتے ہیں، تو حسینی جذبہ دکھانا ہے، اور یہ جو ہم خدمت خلق کے لیے یہاں جمع ہے اور جو کام ہم کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں، یہ بھی حسینی جذبہ ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ ذرا ہاتھ کو بلند کر کے حسین زندہ باد کی صدا لگانی ہے آپ سب نے۔ نواسہ رسول ہے جو عشق کی کتاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے، یہ ذکر ایسا ہے، یہ ذکر ایسا ہے کہ جس کو کرنا بھی ثواب ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے۔ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے، حضور جس کی پیاس کو، حضور جس کی پیاس کو زباں سے ہیں بجھا رہے، زباں سے ہیں بجھا رہے، حضور جس کی پیاس کو زباں سے ہیں بجھا رہے۔ یہ کون ہے نبی چلے تو کاندھے پر بٹھا چلے، کاندھے پر بٹھا چلے، عمر نے وہاں کہہ دیا مقام بھی بتا چلے۔ یہی تو وہ حسین ہے جو دین کا شباب ہے۔ پورے ہاتھ اٹھا کے ذرا مل کے حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب۔ یہ کیمرے کو بھی ذرا گھمائیں، پتہ چلے کہ سچے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے۔ جو لڑکھڑاتے محفلیں حضور میں پہنچ گیا، جو لڑکھڑاتے محفلیں حضور میں پہنچ گیا، نگاہ مصطفیٰ پڑی، نگاہ مصطفیٰ پڑی، خیال دل پہ آ لگا، خیال دل پہ آ لگا، نگاہ مصطفیٰ پڑی، خیال دل پہ آ لگا، خیال دل پہ آ لگا۔ دیکھیے میرے حضور نے اپنے نواسوں کو کیسا پروٹوکول دیا کہ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے حسنین کریمین کو تیار کر کے بچپن میں بھیجا کہ جاؤ نانا کے پیچھے جمعہ ادا کر کے آؤ، اور جو ہی مسجد میں داخل ہوئے میرے نبی منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی نگاہیں پڑتی ہیں اپنا خطبہ چھوڑ کر دوڑ کر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ میں نے اسی واقعے کو شعر میں پرویا ہے، کوئی حسینی خاموش نہیں رہے گا، اگلی بات پہ کسی حسینی کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا۔ میں مائک چھوڑنے والا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جو لڑکھڑاتے محفلیں حضور میں پہنچ گیا، جو لڑکھڑاتے محفلیں حضور میں پہنچ گیا، نگاہ مصطفیٰ پڑی، نگاہ مصطفیٰ پڑی، خیال دل پہ آ لگا، خیال دل پہ آ لگا۔ کہیں نہ گر پڑے حسین، آئے آقا کو
کہ جاری خطبہ چھوڑ کر کہ جاری خطبہ چھوڑ کر کہ سینے سے لگا لیا یہ بچپن حسین یہ بچپن ایک دفعہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ذرا اظہار کرنا ہے ایسے نہیں حسینی جذبہ دکھانا ہے یہ بچپن حسین یہ بچپن حسین یہ بچپن حسین کتنا خوب لا جواب ہے فضا میں ہاتھ اٹھا کے ذرا حسین زندہ باد ہے حسین کامیاب ہے حسین زندہ باد ہے حسین کامیاب ہے نواسائے رسول ہے جو عشق کی کتاب ہے حسین زندہ باد ہے حسین کامیاب ہے شاد و باد رہیں میں درخواست کرتا ہوں چیئرمین رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سیف اللہ ضیاء صاحب اور مرکزی صدر طارق محمود طارق صاحب اور تمام مرکزی قائدین سٹیج پر تشریف لائیں اور تاکہ حلف نامے کی تقریب ہو. تھوڑی ترتیب پہلے سمجھ لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کریں گے اس طرح کہ اپنا دانا ہاتھ آپ کھڑا کر لیں گے اور اپنے بائیں ہاتھ میں آپ نے یہ کاغذ پکڑا ہوگا, اس کو اپنے سامنے کر لیں گے اور چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بولنا شروع کریں گے. میں کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے. آپ اپنا نام بولیں گے اور اپنی ولدیت بولیں گے اور ساتھ اپنا عہدہ بولیں گے. اس کے بعد چیئرمین صاحب کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہوئے آپ اس کو مکمل کریں گے اور اس طرح آپ کا یہ حلف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. چیئرمین صاحب آپ کی طرف. ہاں جی جوان ہاتھ اٹھا لیں, دایاں ہاتھ اٹھا لیں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا نام لیں, والد صاحب کا نام لیں اور عہدہ. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان یونٹ اولڈ حاصل پور ضلع بہاولپور کا وفادار رہوں گا اور اس کے قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا. ذاتی مفاد کو ٹرسٹ کے انفرادی و اجتماعی مفاد پر قربان کر دوں گا. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حامی و ناصر ہو. آمین. بہت مبارک ہو جی. میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دیتا ہوں پاکستان اور انٹرنیشنل, پاکستان اور بین الاقوامی معروف شخصیت, کبڈی کمنٹیٹر, شاعر اور مرکزی جنرل سیکرٹری اصغر علی پہلوان رحمانی کو کہ وہ آئیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. اور زور دانے میں استقبال کیجیے گا اصغر علی پہلوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کراں میں تیرا ہی نام لے کے تیری حمد و ثنا بیان مولا. ایک لفظ ادا نہیں کر سکتی تیرے حکم بغیر زبان مولا. بے شمار مخلوق نہیں انت کوئی, ہر ایک دا تو رزق رسان مولا. اصغر عاجز تے ایک مسکین بندہ, تیری ذات ہے رب رحمان مولا. سونے رب دے نام دے نال شروع. رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ, رحمانی برادری, دکھ انسانیت دی خدمت, یہ ساری گلاں انشاءاللہ تعالیٰ چل دیاں رہن گیاں. تانوں پتہ چلدا رہے گا کہ پورے پاکستان دے ہر یونٹ دے اسی ایک ایک دوست نوں بلایا تاکہ اسی انہوں نے ایوارڈ دے سکیے. اج رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ دا ورکرز دا کنونشن ہے. الحمدللہ دے وچ بے شمار یونٹ جڑے نے آئے. اسی تمام یونٹاں نوں ایتھے دعوت دیاں. رحمانی
ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1122 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ साहब। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने लिए क्लैप करें कि आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जो आज की महफिल को हकीकत का रंग दे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि खुद को गुलामी से आज़ाद कर, खुद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। कोई भी कौम ले लें, कोई भी मिशन ले लें, आज तक जवानों का जोशो जज्बा और बुजुर्गों की हिकमत अमली से ही पाया तक मील तक पहुंचा है। इसलिए सबसे पहले तो मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हासिलपुर इसका बहुत मशहूर हूँ। आज से पहले आप लोगों ने सुने होंगे किससे, और जो बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने देखा होगा, पहले एक पंचायत होती थी। उर्दू में अगर मुश्किल पेश आ रही तो पंजाबी ते आ जा। पहले पंचायतां होंदियां सन, हुण आ जिहड़ी रहमानी वेलफेयर यूनिट ने साडी आने वाली नस्ल नूं दस्सिया कि आ वेख लो दोबारा रहमानी इदां इकट्ठे होंदे ने। इस करके मैं चाहांगा कि इन्हां नूं एप्रीशिएट करन वास्ते एक बार दोनों हाथ बुलंद करके क्लैपिंग की जाए। और इस तो बाद आखिरी गल करके गल मुकाण की कोशिश करदा कि आज तक सानू ये जुमला बड़ा सुनने को मिले कि तुहाडी औकात की है, चादर देख के पाँव फैलाओ। मैं समझदा कि ये वक्त लिया इन्हें रहमानी साढ़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियात कमिश्नर तारिक महमूद रहमानी साहब और उन्हां दे नाल हमारे चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट साहब और दिगर जितने कायदीन हनीफ रहमानी साहब हैं, इनकी क़यादत में वो वक्त ले आए हैं कि हम लोग अपना आरामदा जो इलाका है उसको छोड़ के थोड़ा सा अगर बाहर बढ़ें और अपनी खिदमात को सरअंजाम दें तो हम इस ताना से और इस एहसास कमतरी से बहुत आगे जा सकते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सब लोग सितारे हैं और ये सारी एक कहकशां है और आप सब लोग मिलकर इंशाल्लाह इस काम को इसी तरह आगे लेके चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जिसमें इससे भी बढ़ चढ़कर इंशाल्लाह हम अपना नाम रोशन कर सकेंगे। इसमें मैं चाहूँगा कि जितनी हमारी नौजवान क़यादत बैठी है माशाल्लाह वो जिस लिहाज से भी इस यूनिट के साथ कोऑपरेट कर सकता है तो उसको कोऑपरेट करना चाहिए। हमारे बहुत से नौजवान हैं जो आपको इस ट्रस्ट के शाना बशाना खड़े नजर आते होंगे। लाजमी नहीं है कि आप अगर आपके पास तालीम है, अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं, आप किसी भी लिहाज से अपनी रहमानी बरादरी को अगर प्रमोट कर सकते हो तो आप लोगों को करना चाहिए। और पंजाबी की एक मिसाल है कि ज़ात ते कावां नूं भी प्यारी होती है। आप लोगों को जहां रहमानी जिसको आप खुद पहचान लें, अगर कोई बंदा तारुफ करवा दे तो ये आप लोगों की एक शनाख्त बन जानी चाहिए कि हम इस पर फख्र महसूस करते हैं। और इंशाल्लाह मैं एक बार फिर इस बात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का जो इस प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए और इसको हकीकत का रंग दिया। आखिर में जाते हुए एक रहमानी बरादरी के लिए नारा लगवाना चाहूंगा, खसूसन अपने इस यूनिट के लिए, रहमानी यूनिट हासिलपुर। साढ़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब राव मोहम्मद अरफान साहब चेयरमैन बज़मे शेख दरखास्ती, उन्हां दी पूरी टीम नूं जी आयां नूं वेलकम। साढ़े कोल मेहमान आए मुख्तलिफ यूनिटां दे, असीं इन्हां दे इस तरह नाम नहीं लगांगे, इन्हां नूं स्टेज ते बुलावांगे ताकि ये अवार्ड हासिल करन। मैं सब तो पहले तुहानूं जी आयां नूं आखण वास्ते असीं जदों रात तो सुबह तो बेशुमार मेहमान आए, इन्हां दे जदों घर आए ते यकीन करो सानूं महसूस नहीं होया कि ये लोग सानू बगाना घर है। सानू इंज लगा जिवें असीं अपने घर विच आए हां। बेहतरीन खाना,
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਾਵੇ ਜਨਾਬ ਚਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਬਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਹਾਸਲਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਪੁਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਜੀ। जनाब गुलाम गौस साहब सरपरस्त आला रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बहावल नगर, असी उन्होंने पूरी टीम नू वेलकम आखने दरखास्त करांगा जनाब सेठ बलाल अहमद रहमानी साहब सरपरस्त रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हासलपुर जिला बहावलपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के मेन नुमाइंदे क़यादत को हासलपुर में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इज़्ज़त बख्शी और वो हासलपुर तशरीफ़ लाए। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से यूनिट तशरीफ़ लाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना बड़ा कीमती टाइम में से वक्त निकाला और हमारी दावत पर हासलपुर तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इसकी बुनियाद रखने वाले हमारे कायदीन माशाल्लाह इस वक्त बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हमारे रहमानी भाइयों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हमें कि हम खिदमत इंसानियत कर सकें। ये अरसा तकरीबन 20 साल से काम शुरू है और ऐसा ऐसा मेहनत के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और इस यूनिट से बहुत से दोस्तों को, बहुत से रहमानी भाइयों की और मुस्तहिक लोगों की खिदमत की जाती है। तो ये काम हमारे कायदीन ने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे ये बढ़ता गया और यूनिट बनते गए। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में यूनिट बने हुए हैं। ये सब हमारे कायदीन की मेहनत का नतीजा है और मैं इस मेहनत पे कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको सलाम पेश करता हूँ। वस्सलाम जी। दोस्तों एक बार ही इंसान दुनिया के उत्ते होता है। बेशुमार जिंदगी च तुसी ऐसे भी लोग वेखोगे जिन्हां तुसी नेकियां करदे हो वो फिर तुहाडी बेइज्जती करदे ने ते जदों किसी दी बराबरी ना होवे ते उहनूं गालां कड्ढण लग पैंदे ने। मैं बेशुमार ऐसे लोग वेखे जिहड़े रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान तो जैलसी करके सड़ के ते उन्हां नूं जदों बराबरी नहीं हुंदी ते फिर वो गालां लोकां कोलों भी कढवाउंदे ने, आप भी कढदे ने, लेकिन उन्हां नूं इस गल दा पता नहीं। मैनूं तारक साहब सदर साहब और जनाब चेयरमैन साहब नाल मेरी जदों गल हुंदी कि असीं की करने हो, ये की हो रहा है, मैनू बड़ी परेशानी लगती। कहते ने असगर नहीं, तारक साहब जी मैनू बड़ी चंगी गल उन्हें आख्या असगर तू अपना काम करना पे मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते करना है तो फिर अल्लाह नू फिक्र होना चाहिए यार, क्यों फिक्र करना है। और वाकई मैं वेख्या कि वो लोग जो 2-3 साल तो झूठ बोलते ने पे, मुनाफकत करते ने पे, हसद करते ने पे ते अज उन्हां दा कोई नाम लैण वाला कोई नहीं और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट फिर जिंदाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। सब दोस्तां नू यूनिटां नू अवार्ड दिते जाणगे, कुछ यूनिट हाली आ रहे ने। साडी बेटी अपने जज्बात तुहाडे नाल शेयर करेगी वेलफेयर हवाले नाल, बहुत अच्छी स्पीच कर दी है मेरी बेटी। इस यूनिट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हासलपुर दे प्रेसिडेंट दी बेटी समीना मुख्तार रहमानी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
معزز حضرات السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے خدمت انسانیت۔ آؤ انسانیت کی خدمت کریں، اپنی مدد آپ کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ قبیلے قوم سب ہماری پہچان کے لیے ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو متقیوں پرہیزگار ہے۔ ہماری پہچان رحمانی کے نام سے ہوتی ہے۔ یہ رحمان کے رحمانی مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اگر یہ مٹھی بھر لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اہلیان حاصل پور سے گزارش ہے کہ آپ ان سے تعاون کریں تاکہ یہ لوگ آگے بڑھ سکیں اور خدمت انسانیت میں اپنا کردار جاری رکھیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس شخص کو دنیا میں کوئی یاد نہیں رکھتا جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینے والوں کے نام آج بھی بلندی پر ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی دوسروں کے لیے جینا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ ایک مٹی کو ایک اینٹ بننے تک کے سفر میں ایک بھٹی سے ہو کر نکلنا پڑتا ہے اور وہی بھٹی اس کی قیمت بنا دیتی ہے۔ وہ آگ کی بھٹی اسے جلاتی ضرور ہے مگر ایک قیمت بھی بناتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح چلنا بھی سیکھو، کیونکہ تاریخ ہمیشہ ٹکر لینے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اور جو خود کسی چیز کے قابل بناتا ہے، زمانہ صرف انہیں کی قابلیت پہ ناز کرتا ہے۔ یاد رکھنا، تیرے حوصلے، تیرے جنون، تیرے جذبے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ بس جس حال میں لوگ مرنے کی دعا کریں تم اس حال میں جینے کی قسم کھا لو۔ لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اے میرے دوستو رکھنا اسے سنبھال کر۔ والسلام۔ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ MBBS ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਏ ਦਿਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ तमाम ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਾਂਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ। ਖੜੇ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नायत वाजिबुल एहतराम चेयरमैन हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, और मेरे नहायती आइडियल पर्सनालिटी ऑफ द रहमानी नेशन तारिक महमूद तारिक साहब हाफिज़ कुरान भी हैं और अब हाजिर सर्विस एडिशनल कमिश्नर भी हैं। और उसके साथ साथ आज के इस पंडाल के मेज़बान जनाब मोहतरम नज़र अब्बास साहब और मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम मेरे हाजी हनीफ भाई और दूसरे मेरे अकाबरीन जनाब खुशीम साहब और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, और ख़ास तौर पर मैं
तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हासिलपुर ओल्ड का, जिन्होंने हमें अपनी बड़ी मोहब्बत से, दिल की गहराइयों से हमें इनवाइट किया और बुलाया। मैं उनका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ, और ख़ास तौर पर साजिद साहब का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये पंडाल सजाया। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी छोटी सी तकरीर को, ये ताकि परवान साहब ने क्या दिया है कि आपने दरिया को कूजे में बंद करना है, लिहाजा अगर किसी को मेरी बात समझ में ना आए तो सब बराबर मानिएगा। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ। हम रहमानी हैं, अल्लाह के बाद हमारे लिए रहमानी अव्वल है और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आखिरत है। ऐ मेरे रहमानी भाइयों, हमें जो रहमानी का जो लफ्ज़ हमें आशना कराया, हमें हौसला दिया, हमें वलवला दिया, हमारे जो मरकज़ के कायदीन हैं हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब और तारिक महमूद साहब और हाजी अनीफ साहब, इन लोगों ने वो वलवला हौसला दिया, हिम्मत बढ़ाई। मुझ जैसा आदमी जो कि मैं भी वेलफेयर में मैंने अपना टाइम गुजारा, ज़िंदगी गुजार दी। मैं मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उसके बाद अगर मुझे जो मज़ा आया तो वो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट पाकिस्तान है। इनके साथ काम करके मुझे वो रूहानी तस्कीन मिली जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिसकी हर रहमानी भाई को ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो हमारे नायाब और जो हमारे छुपे हुए जौहरी कीमती हीरे हैं, उनको ढूंढ कर, उनको गली कुचों में जाकर, कस्बों में जाकर, हसनपुर में जाकर, नवाबशाह में जाकर, सिंध में जाकर ढूंढते हैं, निकालते हैं और तरबियत देते हैं अपने अच्छे ख्यालात से, अमाल से। कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। एक हाकी अपने नूरी में ना नूरी, अपनी फितर में ना नूरी ना नारी। तो दोस्तों, इन्होंने अमल करके दिखाया, अमल करके बताया। और ख़ास तौर पर सिंध जैसे सूबे को, जो कि किसी ज़माने में बड़ा तरक्की याफ्ता सूबा था, लेकिन अब ये हमारी कोताहियों से, गलतियों से एक पसमानदा इलाका बन चुका है। यहाँ पर इन्होंने सोशल वेलफेयर का जो दिया जलाया, जो दीप जलाया, उसमें मेरे मोहतरम जनाब हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब और तारिक रहमानी साहब ये पेश रहे। इन्होंने हमें दर्स दिया और हमने वहाँ पर काम किया, कोशिश की। हमसे कभी कोताहियाँ भी होंगी, लेकिन जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आई, तो हमने अपने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो कायदीन थे उनको हमने याद किया और उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। उन्होंने हमें कभी भी मायूस नहीं किया, चाहे वो कोरोना की शक्ल में कोई आफत आई हो, चाहे वो बारिश की शक्ल में कोई आफत आई हो, चाहे वो सैलाब की शक्ल में कोई आफत आई हो। अभी सिंध सैलाब जैसी हालत से दो चार हुआ। इसमें हमें तारिक महमूद साहब जो हमारे सदर हैं और जनाब मेरे चेयरमैन हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब मुझे रात को 1-1 बजे, 12-12 बजे, 11-11 बजे फ़ोन करते थे, पूछते थे भाई क्या हाल है, कहाँ पर क्या चाहिए। इन्होंने हमारी हर मरहले पे माली और अददी और सामान के लिहाज से हमारी मदद की, माली मदद की। और वहाँ पर ट्रक के ट्रक भिजवाए, वहाँ पर ट्रक के ट्रक भिजवाए हमने। जिला नवाबशाह, सांगर, बांगी, हर जगह जहाँ पर भी अफेक्टेड एरिया थे वहाँ पर हमने 4-4 फुट पानी में जाकर वहाँ पर राशन दिया, दवाइयाँ दी। और हमने इनके हुक्म पर पूरे सिंध के लिए हमने एक मोबाइल मेडिकल कैंप का एहतमाम किया हुआ है। जहाँ भी ज़रूरत होती है मोबाइल मेडिकल कैंप की, तो हम वहाँ पर जाते हैं और अपने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के परचम के साए तले वो वहाँ पर हम कैंप लगाते हैं। तो उसका जो भी खर्च होता है हम भी अदा करते हैं, हमारा मरकज़ भी अदा करता है। और इसके साथ साथ अभी जब हमें कॉल आई कि आपने रहमानी वेलफेयर वर्कर कन्वेंशन में आना है, और थोड़ी सी मैं वर्कर कन्वेंशन के हवाले से बात कर लूँ। वर्कर कन्वेंशन जो होता है
ये असेंबल प्लेस होती है, ये नहीं कि एक जगह इकट्ठा होने के लिए कुछ लोग नहीं, ज़्यादा लोग जिसे हम वर्कर कहते हैं, काम करने वाले जो अफराद होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। और ये वतीरा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हासिलपुर यूनिट को हासिल हुआ। सबसे पहले इनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने कोशिश की, तमाम अपने वर्कर भाइयों को एक जगह इकट्ठा किया, आए वो हम सब मिल गए, जो भी हमारे वर्कर भाई हैं इनकी तरबियत करके इन्हें कुछ बताएं, सिखाएं, क्योंकि वर्कर जो होता है एक इकाई होता है, कारकुन होता है, रुकन होता है, लिहाजा हम यहाँ पर आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो मुझे अभी एक शेर याद आ गया है, मैं अभी एक दो शेर कहकर मैं जगह लूँगा, क्योंकि असगर भाई आ गए हैं रूह कब्ज करने के लिए। तो रहमानी वर्कर कन्वेंशन देखने से आई है, रहमानियों के चेहरे पे रौनक। रहमानी वर्कर कन्वेंशन देखने से आई है, रहमानियों के चेहरे पे रौनक। हसनपुर वाले समझते हैं कि रहमानियों का हाल अच्छा है, हसनपुर वाले समझते हैं कि रहमानियों का हाल अच्छा है। हमारे हाल पे न जाइयो हासलपुर वालों, हम तो भूखे हैं तुम्हारी मौतों के। एक शेर और अभी याद आ गया मुझे, हम सौदागर हैं, हमसे मुराद रहमानी, हम सौदागर हैं फूलों के, सच्चा सौदा करते हैं, कोई गाहक को रहमानी वेलफेयर जैसा तो बिन दामों बिक जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफी रहमानी साहब। तेरे कम वा सुबहान अल्लाह मेरे मौला, तेरे कम वा सुबहान अल्लाह, जो करना है कर कमाल देना है। कई लभदे मर जांदे, घर बैठियां कईयां जमाल देना है। खाली कईयां दी गोद नूं कर देवें, कई होण यतीम ते पाल देना है। असगर मंगदे कई जलील होके, बिना मंगिया कईयां नूं माल देना है। ये मेरे रब दे कम ने कि वो सानू अपनी मखलूक दी खिदमत वास्ते चुनिया। तेरे कम वा सुबहान अल्लाह मेरे मौला, तेरे कम वा सुबहान अल्लाह, जो करना है कर कमाल देना है। कई लभदे मर जांदे, घर बैठियां कईयां जमाल देना है। खाली कईयां दी गोद नूं कर देवें, कई होण यतीम ते पाल देना है। असगर मंगदे कई जलील होके, बिना मंगिया कईयां नूं माल देना है। ये मेरे रब दे कम ने कि वो सानू अपनी मखलूक दी खिदमत वास्ते चुनिया। मैं रब दा लख लख शुक्र अदा करना कि सारे वो लोग रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नूं ज्वाइन करदे ने जेड़े ओरिजिनल मुहब्बत करने वाले, अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत करने वाले, नरम दिल वाले ने और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दे मेंबर ने। बहुत अच्छा वर्कर जिन्हें अपने इलाके दे विच, अपने शहर दे विच, अपने जिले दे विच रहमानी लफज नूं प्रमोट करन दा दिन रात ठेका लिया। जदों भी कदी पूरे पाकिस्तान दे विच काम होवे, सब तो ज्यादा टेंशन लेंदे ने। उन्हां दे नाल मैं जिक्र करांगा साडे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दे नवें साडे पाकिस्तान दे नायब सदर जनाब खुशी मोहम्मद रहमानी साहब आफ रहीम यार खां। एक ऐसी शख्सियत ने मिलजुल के सारे काम करते ने। ये शख्सियत जिन्हें मैं हुण बुलाण लगा वा, बेलौस मुहब्बत करते ने रहमानिया नाल, अपने भाइयां नाल। दरखास्त करांगा आउण और अपने दिल दे जज्बात लोकां दे नाल शेयर करन। जनाब हकीम मतलूब रहमानी साहब, सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान यूनिट रहीम यार खां। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम रहमानी बरादरान को हकीम मतलूब रहमानी बंदा नाचीज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वर्कर कन्वेंशन हासिलपुर ओल्ड जो मुनक्कद किया गया है, इसमें बहुत मेहनत की है पूरे यूनिट ने और हासिलपुर की और जो शख्सियात हैं उन्होंने। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो पैगाम है, जो मैसेज है, जो मोटो है, वो ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत।
اس میں کوئی برادریزم نہیں ہے، اس میں کوئی برادری کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے، اس کے اندر صرف اور صرف خدمت کا جذبہ ہے۔ اور جتنے لوگ، جتنے ممبر اس کے ہیں پورے پاکستان میں، ان کے اندر یہی جذبہ ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، خواہ وہ مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس کے بعد مختصر کرتے ہوئے طارق محمود رحمانی صاحب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے۔ حاجی سیف اللہ ضیاء صاحب چیئرمین ہمارے مرکزی، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی تمام زندگی پہ، ان کی تمام سٹرگل پہ کہ انہوں نے اپنی کاسٹ کے لیے کتنی سٹرگل کی ہے، گاہے بگاہے آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آج تفصیلاً حاجی نظر عباس صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا کہ وہ کتنی کاوش اور کتنی پین لیتے ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جب وہ سٹیج پہ آئیں، جب وہ بیان کریں، اپنی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کریں، اپنے دل کا حال آپ سے شیئر کریں، تو خدا را 8-8 10-10 گھنٹے ہم ٹریول کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی باتیں موبائل دیکھتے ہوئے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ضائع کی، تو سمجھ لیں ہمارا یہ ٹریول کرنا، ہمارا یہ سفر بے مقصد اور فضول ہوگا، اور ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو تمام دوست ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر ان کی ان باتوں سے لوگوں کو فیض پہنچانا شروع کریں۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب حکیم مطلوب صاحب، جنہ روحاں نو ہرسدا روگ لگے، بندے دولتاں نالوں رجدے نہیں، جھوٹ بولنا کم منافقاں دا ساتھ سچ دے انہاں تو وجدے نہیں، پوے لوڑ دے جان دی لان بازی اور راٹ کدے میدان چوں بھجدے نہیں، تے انہاں بدلا وانگ فقیر ہوندے جڑے وسدے نے کدے گجدے نہیں۔ میرے اگلے مہمان ساڈے ساتھی نوجوان رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ نال بہت محبت کرنے والی شخصیت، لڈن ضلع وہاڑی تو تشریف لے آئے نوجوان سپیکر جناب سیٹھ ندیم شہزاد صاحب، ڈاکٹر ندیم شہزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ندیم شہزاد اور میرا تعلق بہاڑی سے، اور میں بیسیکلی لڈن سے بلانگ کرتا ہوں۔ یوں تو ویلفیئر کا کام ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو مزہ سیکھنے کا اور کرنے کا زیر نگرانی طارق صاحب ہے، میں ابھی تو اسٹوڈنٹ ہی کہوں گا اپنے آپ کو کہ ویلفیئر کے کاموں میں طارق صاحب سے میں بہت کچھ سیکھ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ آج کا جو کنونشن ہو رہا ہے یہ میری برادری کا ہو رہا ہے، مجھے فخر ہے کہ آج رحمانی بیٹھے ہیں اور رحمانیوں کا کٹ ہے یہاں پہ۔ جیسے میرے دوست لطیف رحمانی صاحب نے کہا تھا ڈوگر پٹی، وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے ہیں اور وہ اپنے نام کے ساتھ صاحب لگانا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈوگر بھٹی یا کوئی اپنے آپ کو جب بھی ملتے ہیں، بھٹی صاحب، ڈوگر صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، تو ہم نے بھی اپنے علاقے میں ایک ریت بنائی کیوں نہ ہم بھی کہیں رحمانی صاحب، اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کامیاب نہیں، یہ ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہے ہیں، یہ تو بڑے ماشاءاللہ سٹیپ لے چکے ہیں پاکستان لیول پہ۔ جب ہم صاحب پہ آئے ہمیں اس پہ بھی بڑی باتیں سننے کو ملی، کمیاں دے بال ان صاحب بن گئے، کوئی بات نہیں، فیس کیا، نکلے۔ میں اپنے علاقے کے چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ میں آفس میں بیٹھا تھا، جناب صدر، میں آفس میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک نواب ہیں، نواب مختیار خان دولتانہ صاحب لڈن کے، شاید آپ میں سے جانتی بھی ہوں گے۔ میری دادی اماں سر معذرت کے ساتھ، بلکہ مجھے فخر ہے کہ انہوں نے برتن کا ایک شاپ تھی میری دادی کی، اور میرے دادا ابو تو ڈیتھ ہو گئے تھے، میرے والد صاحب کی برتنوں کی دکان تھی۔ میرے والد کے پاس گئے اور کہتے کہ جی آپ کے بیٹے کے لائق ایک چھوٹا سا کام، ویگو ڈالا تھا میرے والد صاحب،
जिनके वो परवरिश की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, परवरिश ऐसी थी कि वो मियां साहब नवाब साहब तुसी आ गए हो, खैर है जी मैं उन्हें ऐसी तैसी कर देना जी, करेगा क्यों नहीं करेगा। मुझे पता था काम क्या था, एक मेडिकल लीगल का काम था जी। एक फाइल लगे थे और वो मुझे ना अप्रोच करने आया था, बाबा साहब मेरे वालिद हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा आपको पता है कि हम इनके कमी है, काम यार कर देना हमारी इज्जत रहे। मैंने कहा जी अगर ये बात है तो फिर तो मैं नहीं कहते यार मैं इसके साथ हूं। फोन पे बात हो रही है, मैं ऑफिस में बैठा था, आ गया और फिजिकली उसने एक स्टेप लिया। मैंने उसको कहा जी आप बड़े हैं ऐसे ना करें। कहते जी मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा सर आप जब डेरे में बैठे होते हैं आप तो हमें कमी कहते हैं, आज आप हमारे पाँव पे हाथ लगा रहे हैं, वजह क्योंकि आपको काम है हमसे। असगर साहब ने अभी बात की एक जज्बाती से लहजे में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालात तो वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए हमें हर स्टेप लेना चाहिए, ना कि हर बंदे के गल में जाके हम पड़ जाए कि नहीं जी आज तो सानू मनो कि असी रहमानी है। नहीं, हालात के साथ चलना चाहिए। और ये आने वाले मुकर्रिरीन भी या शायद इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आगे वो बताता हूँ कि वो मेरे पास आ गए, नवाब थे, कह दिया, वाले साहब आए हुए थे। मैंने कहा अबू जी अगर आपका हुक्म है तो मैं कर तो देता हूँ, करना मैंने नहीं है, करना आगे है किसी ने, करवा भी देता हूँ, लेकिन है ये गलत। कहता तेरे प्यो दादे का एहसान ते ले जाएगा ना, कर दे। सर मैंने काम करवाया, गलत था, माजरत के साथ करवाया, लेकिन उससे ये साबित हुआ कि वो नवाब था, हम कमी थे। उससे मैंने उसको ये बताया कि आपके पास सारा कमी ना करे। मेरे ऑफिस में बैठा, मैंने कहा अब आप काम लेके आए हो, हम नहीं काम लेके आए, तो कमी कौन हुआ? मेरी बात पे उसने बड़ा फील भी किया। एक दो बार सियासी मुलाकातें भी हुई हमारी एक दूसरे के साथ, लेकिन ना उसके चेहरे पे ना वो ये लोग रख जाते हैं अपने दिल में। लेके बैठा, मैंने कहा अच्छा मैंने भी सलाम ना किया सियासी मुलाकात। उसने मेरे वाले से कहा ये थोड़ा पुत्र लगता है कि आजकल उतलियां हवावां चुड़ रहा है, तो क्यों ना उसने वही पुत्र है जिन्हें तू कह के आया, क्यों हवावां तो भी तू ही मैंने कह रहा। बात कर बात और निकल जाएगी आगे। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ असगर साहब हमारा बच्चा था, उसने अगर स्पीच कर भी दी थी, एक मोटिवेशनल स्पीच थी। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमने आपसे सीखना है, आपने हमें सिखाना है। आप हमारे बैकर बने, ना कि हमें लोग सिखाएं कि इनके अंदर ऐसे क्लैश। हमारे क्लैशेस नहीं है, आप हमारे बुजुर्ग हैं। आप हमें बताएं कि बेटा ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर जाएं, ये आपको इधर लेके जाएगा, यहाँ पे बुराई है ये अच्छाई है। हमें अच्छाई की तरफ तो आप माइल कर रहे हैं, लेकिन अच्छाई की तरफ जाने भी दें ना, हमें चलने भी दें, हमें चलाएं। जब हमारे हाथ पकड़ के आप चलाएंगे, जब हम चलने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर नाम आपका ही निकलेगा, हमारा नाम तो बाद में ही आएगा ना कि ये हमें तारिक साहब ने, सैफुल्लाह ज़िया साहब ने, असगर पहलवान साहब ने, हनीफ रहमानी साहब ने हमें ये ट्रैक दिया था। आज हम जनाब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम अपने आप पर फख्र कर सकते हैं। अभी तक तो हम अपने पर फख्र भी नहीं कर सकते ना, अभी आप हमें चलाएं और चलने का मौका भी दें, और जो अगर दिल आज़ारी हो तो हम माजूर भी चाहते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत तशरीफ ले उनके जनाब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जिला बहावल नगर मोहम्मद रफीक रहमानी साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का कन्वेंशन पाकिस्तान रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान, जिनके मरकज़ी कायदीन और हमारे कायद हमारे लिए काबिल एहतराम सैफुल्लाह ज़िया साहब और तारक महमूद तारक रहमानी साहब एडिशनल कमीशन कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद जो तैनात हैं, और हमारे हर दिल अजीज़ असगर अली पहलवान साहब जिसको कहते हैं ऑल राउंडर, वो ऑल राउंडर है, हमारे लिए फ़ख्र है। मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे ज़िला बहावल नगर में हमारे इस तंजीम का कोई वजूद नहीं था, तो हमारे मेरे अजीज़ हैं हवेली लखा से
मोहम्मद हनीफ रहमानी साहब मेरे वो भतीजे लगते हैं, लेकिन किरदार में वो बहुत बड़े, उनका कद बहुत बड़ा है। उन्होंने इस रहमानी तंजीम में दिन रात तारक जैसे महमूद साहब और असगर अली पहलवान साहब, सैफुल्लाह ज़िया साहब जो सखावत का बादशाह है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर फ़ख्र करते हैं कि जितनी सखावत वो करते हैं गरीबों के लिए, हमारे सब की शान बनते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने इतनी धुंध के अंदर वो रात को तशरीफ लाए अपनी जान हथेली पे रख के, तो यकीन करना कि उस दिन की बुनियाद रखी हुई आज हमारे ज़िला बहावल नगर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरादरी के हमने तंजीमें यूनिट बना दी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने तारक महमूद तारक साहब को अर्ज़ की कि हमारे चिश्तियाँ रहमानी साहब जो हैं, मोहम्मद रफ़ीक रहमानी तहसील के सदर हैं हमारे, और 3 दफ़ा वो काउंसलर भी बने हैं। तो अब उनको इनसे मैंने बात करवाई परसों चौथ, मैंने कहा जी हमने उधर आना हासिलपुर, तो हमने एक डिस्पेंसरी बनानी है सारी तहसीलों में। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हदायत पर हम डिस्पेंसरी का इनकाद किया है चिश्तियाँ तहसील में। तो सर ने अपने तारक महमूद साहब जो हमें हदायत दी, जो हम इसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन करें ये किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारे अल्लाह की रजा को राजी करने के लिए हम ये इनकी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस पे कामयाबी हम करार करें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का काम है वो ये है कि आज मोहम्मद रफ़ीक रहमानी एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक था, तो यकीन करें कि हमें कुछ काउंसलर नहीं जानता था, तो आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। तो मैं हल्फन कहता हूँ कि अगर कमिश्नर बहावलपुर की मीटिंग होती है 3 जिलों की, रहीम यार का बहावलपुर और बहावल नगर में, उसमें रहमानी बरादरी का जो रफ़ीक रहमानी जिन्होंने इन्होंने कान पकड़ के ऊपर किया, आज उसका मेंबर है। उस मीटिंग में 3 जिलों की मीटिंग में मेंबर होता है। उधर रहमानी तारक साहब याद आते हैं, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट याद आता है। उस वक्त जिस वक्त डीसी के साथ मीटिंग होती है तो वहाँ पे 13-14 कमेटियों का हमें मेंबर बनाया सिर्फ इस रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। 2200 एनजीओ जो है ना पूरे पंजाब में कैंसिल हुई हैं। 2200 हमारे 22 और 20 तकरीबन हमारे एनजीओ थी बहावल नगर में, उन्होंने रजिस्टर करवाई। उनकी कारकर्दगी नाक़िस की वजह से डीसी साहब ने उनको कैंसिल कर दिया। मैं कसम उठाकर कहता हूं कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पे हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ये पैसा जो खर्च करते हैं ये सैफुल्लाह ज़िया साहब करते हैं और तारक महमूद रहमानी करते हैं, असगर पहलवान करते हैं, शान हमारी बनाते हैं। मैं हल्फन कहता हूं कि ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हम अपनी यकमत भी यहाँ कर रहे हैं और अगली अकबत भी संभाल रहे हैं। हमें जो ये दर्स मिलता है, इनकी जो हदायत होती है, उस पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी दोस्तों। ये वो शख्स है जिन्हें रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दे ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨਿਟ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਜਨਾਬ ਸੇਠ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गल है कि मैं चंद लफ्ज़ बोलांगा भी पंजाबी च, क्योंकि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट चंद दिन पहले इहदी बुनियाद साडे कायद मोहतरम जनाब तारक महमूद तारक साहब ने रखी। बचपन तो मैनू शौक सी दोस्तों के नाल बाहर दरबारां ते जाना, फिरना टुरना। इसे तरह ही मैनू दोस्तों ने दसिया कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक तंजीम बनी है और पूरे पाकिस्तान दे विच काम कर रही है। जिस टाइम मैं इलाके च निकलिया, शेखुपुरे तो पता किया, गुजराले तो पता किया, गुजरात तो पता किया, तो ज़ाहरी बात है मेरे दिल की ख्वाहिश सी
ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੈਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਝੂਠੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੈਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੈਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਅਜਮਲ ਚੀਮਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਅਜਮਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੀ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਾਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਔਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਖਸੂਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਹਾਫਸਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟਰਾਫੀ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲ ਦੂਰ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਕੀਮ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਖਾਵਦੇ ਨੇ। ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਉਹ ਭੁਲਾਵਦੇ ਨੇ, ਬਦ ਨਸਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਚਸਗਰ ਭਲਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਕੇ ਪਾਈਆਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। जनाब चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान सैफुल्लाह ज़िया साहिब, जनाब सदर मोहतरम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान जनाब तारिक महमूद तारिक साहब, और बाकी इंतहाई काबिल एहतराम जो सिंध से तशरीफ़ लाए हैं हमारे दोस्त भाई शकूर साहब, डॉक्टर शफ़ी साहब, और रहीम यार खां से भाई खुशी मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए हैं, हकीम मतलूब साहब तशरीफ़ लाए हैं, और उनके साथ जो दोस्त आए हैं, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं। यकीन मानिए कि इतना लंबा सफ़र करके आना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो आपकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हज़रात मोहतरम, आज के हमारे जो मेज़बान गिरामी हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया और हमें मिल बैठने का मौका दिया। हज़रात, आज का जो ये फंक्शन है इसमें कुछ काम की बातें ये हैं कि हम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में क्यों आए, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट क्यों बना, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ये हमारे कायदीन ने सोचा। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का काम क्या है, ये करता क्या है? अमीरों से लेके गरीबों में बांटना, ये हमारा बुनियादी मकसद है। जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट उनकी तालीम के लिए खुश हैं। जो बीमार हैं वहाँ डिस्पेंसरीज का क़याम अमल में लाया जाता है। जहाँ हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, कोई उनको सहूलत नहीं है, वहाँ सिलाई स्कूल बना दिए जाते हैं। जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, पानी अवेलेबल नहीं होता अच्छा, वहाँ हमारे ट्रस्ट की जानिब से हमारे कायदीन वहाँ वो पानी का बोर करवा देते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवा देते हैं। ये सारा कुछ ये अपनी शोहरत के लिए नहीं करते। अगर तारिक साहब की शोहरत के बारे में जिक्र करूं तो मेरा ख्याल है हम तहसीलदार को मिलना हो तो हमको उसकी खुशामद करते हैं। वहाँ तहसीलदार हाथ बांध के खड़े होते हैं इनके पास, एमएनए एमपीए जाते हैं तो हाथ बांध के खड़े होते हैं, इनकी अपनी गर्जें बयान कर रहे होते हैं। और ये इतना भला और इतना शरीफ और इतना मोहब्बत करने वाला इंसान ये आपकी मोहब्बत के लिए गलियों में मारा मारा फिर रहा है कि मेरी बरादरी का ऊपर हो जाए, मेरी बरादरी का नाम ऊपर हो जाए। अगर प्रोटोकॉल इसने लेना हो तो इसके पास तो बहुत है। ये ऊटर वाली गाड़ियाँ, ये इतनी इज्जत तौकीर, सारा कुछ जो मिल रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये पहले दिन से इसकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह मेरी बरादरी ऊपर आ जाए, हम खुददार कौम की तरह एक दूसरे से मिलें, हमें इज्जत मिले, तौकीर मिले, और मेरी कौम के बच्चे पढ़ जाएं। मेरी बीमार कौम, मेरी कौम के जो बीमार ज़हन हैं, कुछ तो बीमार लोग होते हैं, कुछ बीमार ज़हन होते हैं, वो ऊपर आ जाए। दोस्तों, काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का काम है ना, ये मामूली काम नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये हरा कर सकता है, तो नहीं कर सकता। ये वो काम करता है जिसकी ऊपर से मोहर लगती है, जिसे अल्लाह कबूल करता है वो इस काम में आता है। और इस काम में आने के लिए अपना तन मन धन और अपने बच्चों का वक्त काट के अपनी कौम को देना पड़ता है, तो फिर जाके कहीं बनता है। तो हमारे जो ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के दोस्त हैं, इन्होंने एक अहद किया हुआ है। वो क्या है कि हमने ये इस फूल को रंगत बख्शनी है, इस कौम को ऊपर लेके आना है। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी दरीना जो हमारे कायदीन हैं वो ये चाहते हैं। हजरात, जिंदगी खत्म होने वाली चीज है। हमने जो कुछ करके जाना है वो उसका आगे हिसाब मिलना है। मुमकिन है किसी आदमी की दुआ से आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए,
کسی اللہ کے بندے، کسی مجبور بے بس بے کس لوگ کسی کی خدمت کر لو اور وہ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے. یہ میں حویلی لکھا سے آیا ہوں، 72 سال میری عمر ہے، میں نے کیا لینا ہے؟ صرف یہ ایک لگن ہے کہ کسی طرح اللہ کرے میری قوم اوپر آ جائے. اور جو لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، میں یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بناوٹ نہیں ہے اس بات میں، جو لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے شاعر نے کچھ یوں کہا ہے کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، مخلوق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں، میں کوئی امیر آدمی نہیں، میرا گھر بھی کچا ہے اور میں 6 دفعہ اپنے شہر کا کونسلر بنا ہوں، لاسٹ دفعہ میں وائس چیئرمین تھا. طارق صاحب جب سے یہ ٹرسٹ میں آئے اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش کر دی. طارق صاحب نے مدینہ شریف جانے کا سوچا، میرے رب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضور کے قدموں میں پہنچ گئے. یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے یہ گئے. یہاں بہت بھی سیکٹری تھے، وہ بھی جانے کے خواہشمند تھے. پھر بات یہاں نہیں رکی، وہاں گئے اور 56 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر کے وہاں سے آئے. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. یہ سارا کچھ ملا تو اس در سے ملا اور اس قوم کی، اس عوام کی، اس مخلوق کی خدمت سے ملا. تو بھائیو آپ بھی کمر بستہ ہو جائیں، آپ بھی سوچیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اور جہاں یہ مخالفت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسرے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اصلی ہیں، ہم اصلی ہیں، وہ نقلی ہیں، سارے ہی اصلی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کام کرو برادری کا کرو، جہاں کام ہو رہا ہے وہاں دخل اندازی نہ کرو. نہیں بناؤ، پورا پاکستان پڑا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ وہاں آگے مداخلت کرتے ہو جہاں پہلے تنظیم چل رہی ہے. ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کام کریں، برادری کو لے کے جائیں اوپر، کوشش کریں، بنائیں ڈسپینسریاں، بنائیں اسپتال، بنائیں، سارا کچھ کریں. ہم اسے دعا دیں گے، اللہ کی مخلوق انہیں دعا دے گی. لیکن یہ نہ کریں کہ چلتے ہوئے کام میں روڑے اٹکائیں. اور صاحب حیثیت لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں. یہ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے یہاں یہ جو دوست ہیں یہ کام کر رہے ہیں حاصل پور میں، بھائی مختار صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، یہ عام میرے جیسے مزدور آدمی ہیں، مزدوری کر کے کھانے والے لوگ ہیں. ان میں اگر امیر لوگ نہیں آئیں گے، صاحب ثروت لوگ نہیں آئیں گے تو یہ نہیں چل سکتے. اگر جو کوئی امیر آدمی اس میں آ کے شامل نہ ہو اور اس میں خدمت نہ کرے تو اس کی عمارت کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بڑے پن کو، اس کی گاڑی کو، اس کے مال بنگلے کو کسی نے چاٹنا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو میں پھر صرف یہی کہوں گا کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ مہربانی کریں، اپنے لیے کریں. اور پھر اس کے لیے شاعر نے کچھ یوں کہا کہ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. اور وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں، جتنے بھی بڑے ہوں کسی نے کیا لینا کسی سے. میں آخر میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ دوست رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بازو بنے، جہاں جہاں تنظیمیں چل رہی ہیں وہاں اس کے دستے بازو بنے، اور جہاں نہیں ہیں تنظیمیں وہاں کام کریں. اور آخری بات کر کے میں اجازت لوں گا کہ یہ دو شخصیات جو بیٹھی ہیں نا، میں ان کے اگر پاؤں کا دھون بھی پی لوں تو میں شرم نہیں محسوس کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کو دیوار کے ساتھ لگا دیا.
अल्लाह की मखलूक को ऊपर लाने के लिए इन्होंने कोशिश की। तारक साहब मदीना शरीफ डायरेक्टर बन के हज के लिए गए, तो जब ये वापस आए ना 1 माह की छुट्टी, तो उसमें 16 दिन हमें बरादरी को दिए इन्होंने। 1 साल के बाद ये छुट्टी आए और 16 दिन 1 माह में, बल्कि 24 दिन में 16 दिन बरादरी को दिए। ये कोई छोटी बात है? इन्होंने बरादरी के नाम को ऊपर लाने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। मैं सलाम करता हूं इनकी ज़ात को, तारक साहब और सैफुल्लाह ज़िया साहब की। और इसके लिए मुश्किलात भी बड़ी आई हैं। तारक साहब ने कई इंक्वायरियां भी भुगती हैं। तो मैं तो बस ये गुजारिश करके आपसे इजाज़त लूँगा कि भाइयों, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये बड़ी मुश्किल से आए हैं, मैं इसको यहीं छोड़ता हूं। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का, फूल अगर अब भी ना खिले तो कयामत होगी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के लिए जिन्होंने मेहनत की है, इसको ज़ाया ना होने दें, इसकी हिफाजत करें। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे भाइयों इसे संभाल के। बहुत शुक्रिया। अब खिची साहब, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक फलाई अदारा है जो बिला तफरीक दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान दे विच इहदे यूनिट ने। असी जनूबी पंजाब दे यूनिट और सिंध दे यूनिटां नूं अज मदऊ कीता अपने यूनिटां दे वर्करां नूं मोटिवेशन देने वास्ते कि तुसी रब दी मखलूक दी खिदमत किवें करनी है। अज साडे कोल कमिश्नर साहब ने आउणा सी, कमिश्नर बहावलपुर, लेकिन उन्हां दी नौकरी दी वजह नाल, मजबूरी दी वजह नाल उन्हां नूं जाना पै गया इस्लामाबाद। ये उन्हां दे बेहाव ते आए ने। असीं इन्हां नूं दिल दी अथाह गराइयां तो जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखने आ। और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक फलाई अदारा है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ और ये ਜਿਹੜੇ वर्कर ने इन्हां दे हौसला अफजाई वास्ते इंसानियत की खिदमत के हवाले नाल 2-4 गल्लां जरूर करन। जनाब आमर खिची साहब, एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारक भाई तारक रहमानी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज ये ऐसा यानी कि मिशन है, ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान को बनाया गया है। अल्लाह ताला, ज़ाहिर है हम सारे यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, अल्लाह ताला ने जो रिसोर्सफुल लोग हैं उन पे ये फ़र्ज़ किया है कि वो लोग जो डिप्राइव्ड क्लास से हैं, महरूम तबके हैं, उनकी खिदमत करना, उनके दुख दर्द को बांटना, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। तो आप लोगों का ज़ाहिर है रहमानी साहब, अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त दे और इनको रुतबा दे और इनको हिम्मत दे कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। वरना होता यही है कि एक अफसर बना, उसके बाद वो बाद में अपने पीछे कबीले को भी भूल जाता है, वो कोई चीज़ उसे याद रहती है नहीं रहती। तो ये बड़े लोगों की बड़ी निशानियाँ होती हैं। चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ों ने इसी तरह चलना है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है, ये निज़ाम कुदरत इसी तरह चलना है। तो यहाँ पे जो मैं कल परसों एक हमारी वहाँ पे तकरीब हो रही थी हेल्पिंग हैंड के हवाले से, उन लोगों ने 1 साल में 3 अरब रुपया जो है वो माजूर बच्चों को और उन बच्चों को जो कि यतीम बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, उनको दिया है। उसमें बहुत सारे डॉक्टर बने हैं, बहुत सारे इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये पाकिस्तान अगर चल रहा है ना, जहाँ पे हम बातें करते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, फ़लाँ चीज़ ख़राब है, फ़लाँ चीज़ ख़राब है, तो ये आप लोगों की वजह से चल रहा है, जो लोग दर्द दिल रखते हैं। और यकीन करिए पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे है जो चैरिटी में सबसे ज़्यादा पैसे देता है, सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं जब एसी चीचा वतनी था तो वहाँ पे हमारी जो मस्जिद थी अंदर ही अदालतों के अंदर, उसका ज़ाहिर पुरानी मस्जिद थी, बहुत
पैथेटिक हालत में थी, बहुत कंडीशन उसकी वर्स थी, अभी गिरी के कभी गिरी, जब बारिश होती थी सारा पानी उसके सेन में आ जाता था। तो वहाँ बैठ के हमने कहा कि हम इसको शुरू करते हैं। उसका एस्टीमेट लगा कोई तकरीबन 30 लाख के करीब, और यकीन करें कि हमने सिर्फ 4 या 5 लोगों को टच किया और हमारे वो पैसे भी पूरे हो गए। लेकिन वो सारे पैसों से हट के एक रिक्शे वाला था, वो डेली जो है 200 रुपये आके देता था। तो जो जज्बा होता है ये किसी भी काम को आगे लेके चलता है। रिसोर्स होना या आपका फलां चीज़ से अटैच होना, ये काम वो बंदा नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जब हम नीयत कर लेते हैं तो वो जो ज़ात ऊपर बैठी है वो अपने ख़जाने खोल देती है। तो मैं ज़ाहिर है ये इतना ज़ाहिर है जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र हो रहा, उसके काम का ज़िक्र हो रहा, वो महफ़िल सबसे मुतबर और सबसे मुक़द्दस महफ़िल होती है। तो मेरी दुआ भी है, दिली दुआ है कि तारक रहमानी भाई को, उनकी पूरी टीम को अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। और मैं क्योंकि चिश्तियाँ से हूँ तो मेरा भी 2 तरह से मेरी नुमाइंदगी होगी है। ज़ाहिर है मैं भी इसी जनूबी पंजाब से, आप किसी इलाके से हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो कमिश्नर साहब क्योंकि वो आज मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके तो ज़ाहिर है फिर मुझे आना पड़ा। लेकिन मुझे आके यहाँ बड़ी खुशी हुई कि ये वो काम है जो हम बनावटी नहीं कर रहे, ये वो काम है जो हमें करना चाहिए और इसका अजर भी अल्लाह ने देना है। दुनिया से अजर ठीक है मिलता है, कम या ज़्यादा वो तो चलता रहता है। जो खुशी आपको मिलती है किसी गरीब बंदे के सर पे हाथ रखने से, वो आप अरबों रुपया कमा लें, वो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये ट्रस्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब हम मिलेंगे इससे ज़्यादा इसको फल फूल लगे होंगे, इसको ज़्यादा जो है इसके ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, अल्लाह ताला इसको और बेहतर करेगा। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मुझे इज़्ज़त दी, यहाँ मुझे बुलाया और इस नेक काम में मुझसे जो बन पड़ा, जो जैसा भी हुआ, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तां दा। किसी भी लम्मी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अज जिस मंजिल ते अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट ने अपने साथियों नूं, अपनी बरादरी नूं पहुंचाया, मैं समझना अल्लाह की बड़ी रहमत है और असी इसका देन दे नहीं सकते। अज जो इज़्ज़त मिली है ट्रस्ट की बना ते मिली है और बरादरी में मिली है और जिस मकाम ते बरादरी पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, इहदा असी किसी लिहाज नाल इस तरह किसी का दे नहीं सकते। और जो इज़्ज़त भरावां दे नाल हुंदी है उहदा कोई जवाब नहीं। और असी बड़ा कुछ लभने सियासत पीछे दौड़ के, MNA पीछे दौड़ के, MPA पीछे दौड़ के, सियासी लोगों पीछे दौड़ के, जो मैं समझना साढ़े दोस्तों को मुहब्बत मिली है, ट्रस्ट तो मिली है, यदा मैं समझना कि अज तक सानू जगाया तो ट्रस्ट ने जगाया है, सानू इज्जत मिली है तो ट्रस्ट तो मिली है। इस तो इलावा असी इस तो पिछे कोई सानू जगाने वाला नहीं सी, ना कि साड़ा बाजू फड़िया। असी अल्लाह का शुक्र अदा करने कि सानू अज कोई स्टेज मिले और इस स्टेज ते असीं जिंदा वा और हमेशा इस तक कायम रहांगे। अस्सलाम वालेकुम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हासिलपुर ओल्ड ने ये ज़ेर एहतमाम उनका कन्वेंशन करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से हम ये यूनिट पर काम कर रहे हैं। हम सैफुल अज़िया साहब को और तारक महमूद तारक साहब को और नायब सदर मोहम्मद हनीफ साहब को और नायब सदर नाज़र अब्बास साहब को और जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद असगर पहलवान साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। और जितने भी तमाम यूनिट्स हमारे पास आए हैं, हम सबको होता है गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। क्योंकि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान जिन्होंने ये प्लेटफार्म हमें दिया है
ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इन्हीं की बदौलत हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और तारक महमूद तारक साहब ने बहुत दिल से अपनी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँचे हैं। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या नज़र करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। माशाल्लाह आज हासिलपुर इस पंडाल में आने का शर्फ़ हासिल हुआ, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस यूनिट के दोस्तों को जिन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया। और मैं रहमानी बरादरी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म पे अपनी कौम को शऊर देने के लिए खिदमत खलक का अजीम मिशन लेकर चलने के लिए मरकज़ी क़यादत जनाब तारक महमूद तारक और असगर अली पहलवान और इनकी बाकी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारी पिसी हुई कौम को एक शऊर दे के खिदमत इंसानियत के लिए चुना। तो मैं दोस्तों का मशकूर हूँ कि जो खिदमत खलक के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारा यूनिट तहसील नौशहरा विरका डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला वो पहला यूनिट है जिसने 13 मरला अराज़ी ख़रीद कर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मरकज़ के नाम करवाई और वहाँ बिल्डिंग तमीर करके एक बेहतरीन हॉस्पिटल की शक्ल दी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि कदम से कदम मिलाओ, बड़ी ज़रूरत है, अलम वफा का उठाओ, बड़ी ज़रूरत है, बरादरी को घेर रखा है ज़माने की तुंद हवाओं ने, अलम वफा का उठाओ, बड़ी ज़रूरत है। सेठ मोहम्मद लतीफ़ रहमानी साहब बूरे वाला। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया और जिन्होंने आज इस फंक्शन की मेज़बानी की। उनकी दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मौका दिया कि आप लोगों के साथ हमारी दुआ सलाम हो सके, मुलाकात हो सके और आपको देख सके, आप हमें देख सके। तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों का मुझे नाम नहीं पता, मैं साजिद भाई का नाम लेना चाहूँगा, कदीर भाई का नाम लेना चाहूँगा। उसके बाद जिनकी वजह से ये इकट्ठ हुआ है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तारक रहमानी साहब, उनका जो, बल्कि उनका नहीं, हमारा जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसकी बदौलत ही आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, तो उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं जल्दी अपनी बात को वाइंड अप करूँगा चूँकि टाइम थोड़ा है। थोड़ी देर पहले मेरी छोटी बहन आई यहाँ पर, उन्होंने बोला, 2 बातें बोली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली है कि तारीख उनकी लिखी जाती है जो टकराना जानते हैं। तारीख उनकी लिखी जाती है जो टकराना जानते हैं, जो चापलूसी करते हैं उनको कोई भी नहीं जानता, वो गुमनामी की मौत मर जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बात का मतलब हरगिज़ बदमाशी करना नहीं है, पहल करना नहीं होता। इस बात का मतलब ये होता है कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कभी समझौता ना करें। अपनी इज़्ज़त नफ्स को आपने बचाना है, एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। 2-3 बातें हैं जो जिसमें जब मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ना, दुनियादारी की समझ आ रही थी और मैं चाहता था, ख्वाब मेरे बड़े थे, आज भी बड़े हैं और इंशाल्लाह रहेंगे बड़े, उनको अचीव भी करेंगे। मैं कहता था कि यार जैसे दूसरे लोगों के कोई जट है, डोगर है, मलक है, कोई एसी लगा है, कोई डीसी लगा है, कोई मिनिस्टर लगा है, कोई एमपीए, कोई एमएनए, मैं कहता था यार हमारे लोग भी ऐसे होंगे। जब बाहर निकल के देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने देखा यार इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ऐसा क्या है, हमारे लोग सामने